ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಪಡೆದಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಇಂದು SBI ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡಲು ಜೂನ್ 30ರವರೆಗೆ ಸಮಯ ಬೇಕೆಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋರಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಗರಂ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಂತಹ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ನಾಳೆಯೇ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇಚ್ಛಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನ ಮೀರಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಚಾಟಿಯನ್ನ ಬೀಸಿರುವಂತದ್ದು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಕಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ ನಮಗೆ, ಓಕೆ, ಆದರೆ ಅದು ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು ಎಂಬಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆಯೇ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ನಿತಿನ್ ಸೇತಿ ಮಾತನಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ನಿತಿನ್ ಸೇತಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಎಂಬ ತನಿಖಾಧಾರಿತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು. ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ತಂಡವೇ SBIಯ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದ್ದವರು. ಯಾವ ತರದ ಮಾಹಿತಿ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ SBIಗೆ ಸಿಗಬಹುದು, ಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನ ತನಿಖೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಹೊರಗೆ ತಂದಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ತಂಡ. ನಿತಿನ್ ಸೇತ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದು ಕೂಡ ಇಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಗೆಲುವು ಮಾತ್ರ ಅಂತ. ನಾಗರಿಕರನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾಮಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ SBI ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ನಾವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಎರಡು ತರದ ಮಾಹಿತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿಯೇ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹಣ ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುವಾಗ SBI ಹೇಳಿತ್ತು, ನಾವು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ನಾವು ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೇಳಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ತುಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಕೇವಲ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬಂತು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿರಿ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಆದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಹಿಂದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 15ಕ್ಕೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆದೇಶ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಒಂದು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟವರು ಪಡೆದವರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ತಾಳ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕೆಂದು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಸೋಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೊದಲು ಏನೂ ತಿಳಿಯಬಾರದು ಎಂಬಂತ SBIನ ಇಚ್ಛೆ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿತಿನ್ ಸೇತಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಆದರೆ SBI ಅವರು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಬಾಂಡ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಯಾವ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆಯೂ ದೇಶದ 140 ಕೋಟಿ ಜನರ ಮುಂದೆಯೂ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿತಿನ್ ಸೇತಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ SBI ಕೊಡುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಾಳೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯ ಹಣ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಾಳೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೂ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ನಿತಿನ್ ಸೇತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. SBIಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬೋನೊಳಗೆ ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿಟಕಿಯ ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾರಾಗಿ ಹೋಯಿತೋ ಎನ್ನುವ ಸಂಶಯ ಈಗ ಮೂಡಿರುವಂತದ್ದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಹೊರಗೆ ತಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹೇಗೋ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮುಗಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಬೇರೊಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಂಬಂತೆ ಇದೀಗ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಮವೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಆ ನಿಯಮದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಣ ನೀಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ನಂಬರ್ ಸಮೇತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ನಿಯಮವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು ಬಹುಶಃ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಇದೆಂತ ಆರ್ಥಿಕ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಅಲ್ಲವೇ ವೀಕ್ಷಕರೇ? ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಈ ತರದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ? ನಿತಿನ್ ಸೇತ್ ಅವರು ಕೊನೆಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಚಿಂತನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತಂದಿರಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಗೆ ತರಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದಾಗಿತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. मुझे आज भी लगता है कि ये हमारी आधी जीत है और हमारी पत्रकारिता की सिर्फ आधी जीत है, क्योंकि अगर हम डिटेल में जाएं, जो ऑर्डर फाइनली कोर्ट से आया कंटेम्प्ट पिटिशन और एसबीआई के प्ली पे कि हमें 3-4 महीने और दीजिए ये सब बाहर निकालने का, तो कोर्ट ने एसबीआई की आधी दलील मानी और बोला कि आप जितना इंफॉर्मेशन है आप जल्दी निकालिए और कुछ दिनों में ही बाहर रखिए। 15 तारीख तक इलेक्शन कमीशन को वो बाहर करना होगा। एसबीआई इलेक्शन कमीशन को देगा और इलेक्शन कमीशन 15 तारीख की शाम तक बाहर रखेगा। लेकिन एसबीआई की एक दूसरी प्ली थी कि हम ये डेटा जो देंगे 2 अलग अलग खांचों में देंगे। एक खांचा जिसमें लिखा होगा कि किसने ये बॉन्ड खरीदे थे, और दूसरा एक अलग खांचा जिसमें होगा कि किन पॉलिटिकल पार्टीज ने ये बॉन्ड एनकैश करके अपनी जेब में पैसे डाले। एक शुरू में जो दलील थी एसबीआई की कि हम ये नहीं बता पाएंगे जल्दी करके कि किस व्यक्ति का, किस धन्ना सेठ का, किस कंपनी का पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी की जेब में गया। तो इस कंटेम्प्ट पिटिशन की सुनवाई के समय कोर्ट ने साफ किया कि हम वो खबर, उतनी इंफॉर्मेशन तो आपसे मांग ही नहीं रहे हैं। हम कह ही नहीं रहे हैं कि आप जोड़ के बताएं कि किस कंपनी का पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी में गया। सिर्फ अलग एक खांचे में बता दीजिए किस पॉलिटिकल पार्टी ने पैसा दिया था, और एक अलग खांचे में बता दीजिए कि पॉलिटिकल पार्टीज को कितना कितना कब कब मिला। तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट का जो पहला ऑर्डर था उसमें साफ था कि जब उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना, तो उन्होंने कहा कि हर नागरिक को ये हक है जानने का कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कौन कंपनी पैसा दे रही है, क्योंकि ये मानना चाहिए कि जो कंपनी देती है वो अपने मुनाफे के लिए देती है, कोई भले के लिए तो देती नहीं है। लेकिन अब जो कंटेम्प्ट पिटिशन की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि आप ये तार जोड़ेंगे नहीं देने वाले और लेने वाले के बीच, आप अलग अलग खांचों में ही अलग अलग डाल के दे दीजिए। तो इसमें मुझे लगता है थोड़ी नागरिक की हार भी हुई है, लेकिन जितना एसबीआई चाह रहा था कि कुछ भी ना पता चले इलेक्शन से पहले, वो तो नहीं होने दिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास एक बहुत सिंपल तरीका था जिससे वो ये करके दे सकता था कि हर इलेक्टोरल बॉन्ड पे एक सीरियल नंबर होता है, जिस सीरियल नंबर से आप कनेक्ट कर सकते थे कि किसने खरीदा और किसने उसको कैश करके अपनी जेब में पैसा डाला। एसबीआई इससे बच निकला है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको ये इंफॉर्मेशन देने के लिए साफ तौर पे नहीं बोला है। तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि साफ तौर पे नहीं बोला गया और एसबीआई वैसे ही इतना हिचक रहा है, तो ये खबर नहीं पब्लिक में डालेगा, वो अलग अलग 2 डब्बों में डाल के एक तरीके से दे देगा और बोलेगा आप खुद जोड़ लीजिए। इस पे दूसरी बात आई कि कितनी क्षमता आम आदमी की, आपकी, मेरी होगी कि वो दोनों डब्बों की खबर मिला के ये तार खुद जोड़ सके हम लोग। तो एक तो इसमें बहुत रिसोर्सेज लगते हैं, क्योंकि आपको कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स खरीदने पड़ते हैं जो प्राइवेट मिलते हैं, और हम लोग रिपोर्टर्स कलेक्टिव में वो काम करने वाले हैं। दूसरा, बियॉन्ड द पॉइंट कुछ स्तर तक हम बता पाएंगे, लेकिन एकदम कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ बताना अभी भी मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं होगा। एकदम ये बोलना कि ए ने बी को दिए और ए ने बी सी डी को दिए, या बी कंपनी, बी पॉलिटिकल पार्टी को ये 18 एग्जैक्ट लोगों ने इतना एग्जैक्ट रुपया दिया, मेरे ख्याल से वो उस स्तर तक मुमकिन नहीं होगा जो होना चाहिए था और जो एसबीआई की काबिलियत थी हमारे सामने रखने की। अगला सवाल ये पैदा हो रहा है, आप कह रहे हैं काफ़ी हद तक हम दे सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक डिटेल दे दें, और आपने साफ तौर पे ये बात कही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए ये आसान काम था। उनके पास तो 2 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं। मैं समझती हूँ कि हो सकता है दर्जन भर रिपोर्टर आपके यहाँ काम करते हों, उन्होंने इतना बड़ा पर्दाफाश कर दिया जहाँ 2 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हों, और मेरे आपके जो टैक्स का पैसा है उससे उनको तनख्वाह जाती है। और एक ज़माने में
एक तरह से एक ताज की तरह भारत का लोकतंत्र और भारत का समाज पहना करता था कि हमारे पास इतना बड़ा बैंक है, दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है, भारत की तरक्की में भी एक उनका योगदान रहा है। लेकिन आज कैसे सियासी आकाओं के सामने घुटने टेके हुए हैं। बहुत अफसोस हुआ ये जानकर कि उनके पास ये डिटेल थी, उसके बावजूद भी वो नहीं दे सकते थे। उनके लिए आसान था। और आपने कहा कि एक खिड़की कहीं ना कहीं कूद जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी मिल गई कि ठीक है, आप कमरे में तो आ गए, आप पकड़े तो गए, लेकिन एक छोटी खिड़की मिल गई, वहां से कूद के आप बाहर चले गए। हम लोग मजाक में ये भी कह रहे थे कि अगर स्टेट बैंक के 2,40,000 मुलाजिमों में से उनको लगता है कोई ऐसा नहीं है जो ये कर सके, तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव, हम मजाक में कहते हैं, मेरे कोलीग्स तपस्या और गिरीश जिन्होंने ये काम किया मेरे साथ, मैं उन दोनों को SBI को लियन पे दे सकता हूँ कि 2 महीना उनको दे दे, वही खोद के निकाल देंगे। तो मजाक में बोलता, लेकिन सच ये है कि हम लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन स्टेट बैंक का कोर्ट के सामने एक तरीके से ब्लेटेंट झूठ बोलना। दूसरा कि आप ये, किसी को बैंकिंग ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, आप ये मान के सोचिए करीबन 16-16,500 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को गया है। तो स्टेट बैंक हमें ये बोल रहा है कि 16,000 करोड़ रुपए का इधर से उधर मूवमेंट हुआ बैंक के अंदर, लेकिन किसी को पता ही नहीं है, ना ऑडिटर्स को पता है, ना बैंक के मैनेजर्स को पता है, ना बैंक के टॉप ऑफिसर्स, एक ऑडिट कमिटी होती है उसको पता है, जो बैंक के फॉर्मल 4 किस्म के ऑडिटर्स होते हैं ना उनको पता है। और लिटरली उन्होंने बोला कि साइलोज में ये खबर पड़ी थी, मतलब एक तरीके से बोले तो कि 2 डब्बों में रखी हुई थी हमने। ये 21वीं सेंचुरी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो हजारों करोड़ का महीनों में ट्रांजैक्शन करता है, और जहां हर रोज, क्योंकि मैं पुराने एक जमाने में ये ऑडिटिंग का काम करता था, तो हर रोज बैंक का रिकंसिलिएशन होता है कि कहाँ कितना पैसा पड़ा और कहां से क्या गया। अगर वो रिकंसिलिएशन बराबर ना हो तो 1 घंटे में इंक्वायरी खुल जाती है कि वो पैसा कहां गया। और यहाँ पे स्टेट बैंक हमें बोल रहा है कि 16,000 करोड़ रुपया जो कि पॉलिटिकल पार्टीज की जेब में जा रहा था, और जिसमें सबसे ज्यादा बीजेपी की जेब में गया जो सरकार में है, उनके पैसे पे हमने नजर ही नहीं रखी, हमें पता ही नहीं, वो डब्बे में पड़ा रह गया सालों साल। और ये बावजूद इसके कि सरकार के और बैंक के अपने कागज बताते हैं कि वित्त मंत्रालय ने साफ रिकॉर्ड पे बोला था, इंटरनल रिकॉर्ड्स पे, कि SBI की कैपेसिटी ऐसी है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी एक बॉन्ड ब्रांच में लेके जाए, सिर्फ ब्रांच में बोले भाई मुझे मिल गया, इसको एनकैश कर दो, तो उसी वक्त SBI बता सकता है कि ये बॉन्ड किसने खरीदा था, कहां खरीदा था, किस वक्त खरीदा था। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिटन रिकॉर्ड्स में, किसी पुराने सचिव का एक कोई ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट सिर्फ हो जो वो पलट जाए रोज के रोज, ये रिकॉर्ड्स पे है सरकार के। और इसके बावजूद अगर कोर्ट ने भी उनको इतना करने दिया है, तो मुझे तो, हम लोग को कई बार इतनी आदत हो गई है कि चीजें हल्के में ले लेते हैं, बट मेरे ख्याल से बहुत सीरियस इशू है कि बैंक्स ऐसे बात कर सकते हैं आजकल कोर्ट से और झूठ बोल सकते हैं। एक तो अपनी सच्चाई जानना बहुत जरूरी है, उससे कुछ हो ना हो, लेकिन देश के हालात क्या हैं और देश की पॉलिटिक्स के हालात क्या हैं, कौन हमारी पॉलिटिक्स चलाता है, या ये बोलें कि कौन हमारे नेताओं को चलाता है, ये जानना तो हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। चाहे इसके बाद आप बोलें कि ये तो हो चला, लेकिन हिस्ट्री और आगे फ्यूचर इसी पे गढ़ा जाता है कि आपको कितनी सच्चाई पता है। हमारी देश की सच्चाई की वोटर के हाथ में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है कि किसी कॉर्पोरेट के हाथ में, अगर ये हमें पता नहीं चलेगा तो डेमोक्रेसी कैसी हुई। डेमोक्रेसी का सार यही था कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ एक वर्ग को जवाबदारी रखेगा, वो है वोटर। इस केस में क्योंकि धन्ना सेठ और बड़े बड़े कॉर्पोरेट हजारों करोड़ दे रहे हैं, तो साफ था कि जो लोग इस पैसे को लेके सत्ता में आते हैं वो उनके लिए काम करेंगे, वोटर के लिए नहीं करेंगे। अब जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की दूसरी खबर जो अभी हुई, और वो इससे जुड़ी हुई तार है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जमाना तो खत्म हो गया, एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्ती खत्म कर दिया। लेकिन इसके खत्म होने से कुछ हफ्ते पहले ही रिपोर्टर्स कलेक्टिव तपस्या, मेरी कोलीग है, उन्होंने दिखाया कि इसी सरकार ने एक नया तरीका खोला है पॉलिटिकल पार्टीज के पैसे पे सर्वेलेंस रखने का। उन्होंने नए इनकम टैक्स एक्ट रूल्स के अंदर अब हर डोनर से बोला है कि आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देंगे, हमको जरूर एक ब्यौरा देंगे पूरा ट्रांजैक्शन वाइज। ये अभी तक कभी नहीं हुआ था। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खत्म हो गया,
लेकिन अब सरकार के पास हर पॉलिटिकल पार्टी को किस आदमी ने किस वक्त, किस कंपनी ने किस वक्त, किस चेक नंबर से पैसा दिया, वो डिटेल भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगी। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ये हो रहा था, तो अब आप सोच सकते हैं जब हर जरिए से जो पैसा किसी पॉलिटिकल पार्टी पे जाए, चाहे वो चेक हो, चाहे कैश हो, चाहे बैंक ट्रांसफर हो, उसका सारा डेटा अगर सरकार मुहैया कराएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रास्ते, उसका क्या असर हो सकता है हमारी डेमोक्रेसी पे, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज पे और हमारी पॉलिटिकल फ्यूचर पे, ये सोचने वाली बात। मेरे ख्याल से एक जो मोदी सरकार ने 10 साल बहुत मुशक्कत करी कि ऐसी इमेज बने कि हम एकदम साफ हैं, पिछली सरकार में करप्शन होता था, हमारे केस में नहीं हुआ। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ये खबर आने से, जो हमारी पुरानी खबरें और ये जो अब नया डेटा आएगा, इससे साफ हो गया है कि एक तरीके से लीगलाइज करप्शन बन गया था और उसका पर्दाफाश होने की उम्मीद है। पॉलिटिकल पार्टीज इसको कितना बना सकती हैं मुद्दा, वो तो पॉलिटिकल पार्टीज पे निर्भर करता है। आपका मेरा काम है खबर डालना, बाहर सच्चाई बताना, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन क्या करती हैं, कितना करना चाहती है। लेकिन हाँ, इतना मेरे ख्याल से बहुत लोग को जाहिर हो गया जिन्होंने खबरें पढ़ी हैं, सिर्फ फालतू के टीवी चैनल नहीं देखे और सच में खबरें पढ़ते हैं, तो उनको इतना तो साफ हो गया होगा कि जो एक साफ छवि की सरकार की जो एक पूरी इमेज बनी हुई थी कि यहाँ पे एकदम डिसेंट्रलाइज करप्शन नहीं होता है, तो यहाँ सेंट्रलाइज करप्शन का एक प्रूफ, बहुत सिस्टमिक प्रूफ और लीगल तौर से ऐसा किया गया सालों दर साल, उसका प्रूफ बाहर आ गया है। तो हमारे मीडिया में बाकी भाई दोस्त लोग इतने डरे रहते हैं कि वरना खबरें बहुत समय से बाहर आती। मतलब हम लोग इतने छोटे से न्यूज रूम में कि 6-7 लोग बिना दफ्तर के अगर ये खबर कर सकते, सोचिए कि अगर मीडिया को आजादी होती तो क्या क्या बाहर आता।